Good morning, class 11. Welcome back once again to our online classes. And today we are going to continue the last part of the video that we was discussing about the graph. हम लोग पिछले वीडियो में ग्राफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे. The graph in the different variations. The variation was that the graph between the velocity time, the graph between the displacement time, and the graph between the acceleration time. वी हैव लर्न अ लॉट ऑफ अ थिंग इन द लास्ट क्लास. हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं. वॉट विल बी देयर इफ द ग्राफ इज इन अ स्ट्रेट लाइन. अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन में है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा. स्ट्रेट लाइन और एक कांस्टेंट स्लोप में है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा. वेरिएबल लाइंस में है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा. उस पर हम लोगों ने प्रैक्टिस सीट भी सॉल्व किया था. प्रैक्टिस सीट भी एक दिया था कि हाउ वी कैन प्रैक्टिस अबाउट दीज ग्राफ्स. Now today we are going to continue with the graph while doing the some questions, some numericals over here, जिससे हमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा. लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी किया था जहाँ पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि हाउ वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड हाउ वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. We have done there. In the case of the acceleration we need to find the slope of that graph, and in the case of the distance or a displacement we need to find the area under the graph. That was a very simple concept and you should know about that and you should learn about that. You should remember that. Why? Because of the मैंने last class में बताया था कि a lot of a question is going to be asked in your NEET level or in your JEE level from the graph. So it have a lot of a scope for the NEET and the JEE aspirants. Those who are thinking about to prepare for the NEET and the JEE, they have a lot of a scope from this topic. So let me clear some more concept of the graph while doing the some question. बेटा बहुत सिंपल सा चीज़ है, ध्यान रखना. अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो हमें अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है देन वी नीड टू फाइंड द स्लोप ऑफ दैट ग्राफ. इफ वी नीड टू फाइंड द रिटार्डेशन वी विल फाइंड द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ दैट ग्राफ. If we need to find the displacement then we need to find the area under the graph. This was a concept और उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे कि हाउ वी कैन यूज द ग्राफ इन द केस ऑफ द न्यूमेरिकल्स. वी हैव अ टू न्यूमेरिकल्स here. The first one is here. The graph is represented here. This is the displacement time graph and second one is there. द ग्राफ ऑफ द वेलोसिटी टाइम. इस तरह के भी क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम्स पे पूछते हैं या हमारे जो होम बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसमें भी पूछे जाएंगे. नाउ लेट वी सी द क्वेश्चन इज गिवन हियर. यू हैव अ ग्राफ हियर. द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज गिवन हियर. एक ग्राफ हमें दिया हुआ है जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में है. डिस्प्लेसमेंट इज गिवन इन द किलोमीटर एंड द टाइम इज गिवन इन द आवर. वी हैव अ ग्राफ ए एंड अ ग्राफ बी इज हियर. नाउ बोथ ग्राफ्स आर intersecting here at a point. इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. Now see some data is given here. We need to this is the data and relating these data we need to find the answer of these part. The first part is here. How much distance ahead from A is B. उसने बोला B. यहाँ पे B ग्राफ हमारा ये है और A ग्राफ हमारा ये है. उसने बोला B A से कितना डिस्टेंस आगे है. If you see the graph you can see here this is the distance point. ये हमारा distance point है. हमारा A कहाँ से स्टार्ट कर रहा है. A से starting from the zero. इसको हम zero point कंसिडर करते हैं. In the case of the axis we know this is the origin point. Origin point हम इसको कंसिडर करते हैं. The A graph is starting from here and B graph is starting from here. In the case it is said here how much distance is ahead. A से कितना distance आगे B है. You can see here when A starts from the zero. जब A zero से start करता है तो B कहाँ से start कर रहा है. It is starting from the 100. Means how much distance is ahead from A. Answer is given here. Answer number 1. Distance ahead by A is. कितना डिस्टेंस आगे है. A से B कितना डिस्टेंस आगे है. The initial point of the B is 100 kilometer. The initial point of A is 0 kilometer. B 100 से स्टार्ट करता है, A 0 से स्टार्ट करता है. It will be 100 kilometer ahead. यानी जो B होगा वो A से 100 किलोमीटर आगे खड़ा है. 100 किलोमीटर आगे खड़ा है. So he will be the 100 kilometer ahead from A.
Now the second one is the what is the speed of a bee. If we need to consider the bee, हम इस पॉइंट से कंसिडर करते हैं जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है. What is the speed? Second part, speed of bee. Speed of bee. What is the speed? We know the formula. Change in a displacement upon time. हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज करता है कितने टाइम में. What is the change in the displacement here? We will find the displacement here like this and time is this. इतने टाइम को हम फॉलो करेंगे और इतने चेंज को हम आइडेंटिफाई करेंगे. चेंज द डिस्प्लेसमेंट 150 माइनस 50, 150 माइनस 100, 150 किलोमीटर माइनस 100 किलोमीटर. ये डिस्प्लेसमेंट के चेंज को हम रिप्रेजेंट करेंगे. हम वहाँ तक कंसिडर करेंगे जहाँ तक हमारे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या है 150. ये बी ग्राफ के लिए बी ग्राफ हमारा इतना है तो ये डिस्टेंस हमारा 150 है माइनस 100. 150 माइनस 100 एंड व्हाट इज द टाइम 2 आवर्स अपॉन 2 आवर्स. इट विल बी 50 अपॉन 2. इट विल बी 25 किलोमीटर पर आवर. इसकी स्पीड बी की स्पीड क्या हो जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर. व्हेन एंड वेयर द ए कैचेस बी. थर्ड पार्ट कि ए बी को कहाँ पर कैच करता है. At here, at the distance 150 kilometer, at the time after 2 hours, we can say when and where A catches B at distance 150 kilometer. A catches B. कितने डिस्टेंस पे कैच करेगा 150 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद ए बी को कैच कर लेगा. देखो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. इट मीन्स दैट दे आर मीटिंग टुगेदर. व्हाट इज द फोर्थ पार्ट. द फोर्थ पार्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ए एंड बी. स्पीड ऑफ ए एंड बी का डिफरेंस निकालना है. हमने बी का स्पीड निकाला. वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ए. व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए. स्पीड ऑफ ए हम इसी बीच में निकालेंगे यहाँ तक जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है. Here, what is the distance traveled by A? The distance traveled by A is the 150 kilometer, and the time is 2. So distance is here 150 minus 0 upon 2 hours. It will be 75 kilometer per hour. Now we need to find the difference between the both speed. दोनों speed के बीच का difference find करना है. तो difference in a speed, difference in a speed will be 75 minus 25, that will be the 50 kilometer per hour. So this is the final answer 50 kilometer per hour. ये दोनों के स्पीड का डिफरेंस है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. दो ग्राफ दिए हुए हैं. दोनों ग्राफ से हमें कंपेयर करके निकालना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द स्पीड कवर्ड बाय ए, व्हाट इज द स्पीड कवर्ड बाय बी व्हेन दे विल मीट टुगेदर. व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, कौन किससे आगे होगा कौन किससे पीछे होगा. ये ग्राफ से हमें फाइंड करने का ये न्यूमेरिकल है. अच्छे से इसको समझ लेना. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट. यू कैन डू देयर. कुछ अभी प्रैक्टिस सीट में भी हम हो सकता है कि ए बी और सी ग्राफ दे दें. 3 ग्राफ का कंपैरिजन करने वाला दे दें. सो इस तरह का क्वेश्चंस हमारा आता है ग्राफ में. नाउ दिस वाज अ कंक्लूजन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बीच का कंक्लूजन था कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दिया जाए तो उसको हम कैसे यूज करते हैं. एक क्वेश्चन और आता है हमारा इन द एग्जामिनेशन पैटर्न. वन मोर टाइप ऑफ अ क्वेश्चन इज देयर. इफ वी टॉक अबाउट द दैट क्वेश्चन, व्हाट इज देयर, ही विल गिव द ग्राफ in the examination paper. You will get the graph and you need to convert the graph from one variation to another variation. हमें velocity time graph दे देगा, बोलेगा acceleration time graph निकालो. acceleration time graph दे देगा, बोलेगा ये निकालो. So let we see the another type of question that is given here. It is given here, the velocity time graph is given here. This is in a kilometer and this is in hour, kilometer per hour. We need to convert the graph into acceleration time graph. हमें इसको acceleration time graph में इसको change करना है. velocity time graph को acceleration time graph में हमें convert करना है. Now if we talk about this graph, we can see here the velocity is moving constantly upward. पहले ग्राफ में अगर हम ये बात करें, this is a O, A, B, C. These points are here. In the case of OA point, जब हम OA पॉइंट की बात करते हैं तो ग्राफ हमारा कॉन्स्टेंटली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है.
इट मीन्स कॉन्स्टेंटली इट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन मूव कर रहा है। बी, ए से बी के बीच में हमारा ग्राफ कांस्टेंट है और बी से सी में हमारा डिक्रीमेंट जा रहा है, मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। सो लेट वी सी द ग्राफ व्हाट इज गिवन हियर, हाउ वी विल कन्वर्ट द ग्राफ इन द केस ऑफ दिस पैटर्न। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। Again, once again, you can see here the graph AB is in a constant velocity moving upward. We can say constant acceleration. At the case of the AB, the acceleration is 0, velocity is constant, and the B to C is the retardation is going there. Now let me draw the graph. First, we need to find the acceleration. मैंने लास्ट वीडियो में बताया था in the case of finding the acceleration with the velocity time graph, we need to find the slope. हमें slope OA का find करना है. Then what is the slope here? Acceleration from O to A, from O to A, we need to find the slope of graph OA. It will be the slope of graph OA. What is the slope given here? In the case of a slope, we will use the tan values, yani perpendicular upon base. What is the perpendicular? This is the, here P. Suppose this is the P, AP upon base is here OP. What is the AP? It is the height 20 kilometer upon OP is here 2.5. Solve it. Remove the point. It will be a 200 upon 25. 25 8 is a 200. 8 kilometer per hour square. This is the graph here, 8 kilometer per hour square. This is the acceleration. Now at AB, slope at AB. Now see here, AB पर स्लोप हमारा क्या हो जाएगा? It will be 0. कोई स्लोप नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन विल बी 0. तो हमने ग्राफ, अगर हमने ग्राफ पढ़ रखा है अच्छे से, ग्राफ हमें रिमाइंडेड है, सो वी कैन डायरेक्टली राइट देयर, हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली वहां पे लिख सकते हैं कि द ग्राफ विल बी द 0. नाउ वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ ग्राफ BC ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हियर Q, सपोज दिस इज द Q, BQ अपॉन QC, परपेंडिकुलर हियर BQ अपॉन QC, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर, दिस इज द BQ एंड QC इज हियर दिस वन. व्हाट इज द BQ? BQ इज हियर 20 अपॉन QC इज हियर 7 minus 5, 7 minus 5, 20 upon 2, it will be 10 kilometer per hour square. This is the value here. Now if we need to draw the acceleration time graph, how we will draw? Like this. This is the acceleration time graph. Acceleration time graph. The maximum value is the, this one is the 5, this one is the 10, here is the minus 5 and here is the minus 10. ऐसे ड्रॉ करेंगे. For the slope of O to A, the value is given here plus 8 km per hour. That is in a acceleration. This is the acceleration, 8 km per hour. Up to time, what is the timing here? Time is here 2.5. We will denote the time like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We will denote the time like this. If we need to draw the graph, see how we can draw the graph. In the case of drawing the graph from O to A, the graph is for 8 and the time is for up to 2.5. Time हमारा 2.5 तक गया है और 8 तक गया है. It will be something like this. ये ग्राफ रिप्रेजेंट किया. From A to B, it will be the 0 और 0 कहाँ से है? 2.5 से 5 तक है. It will be like this. The graph for A to B is like this. The graph for B to C, what is the graph for B to C? B to C is here and it is from 5 to 7. The graph is here for 10 and this is the retardation one. So we need to draw the downward side
5 to 7 like this. This is the retardation value, so we need to draw the graph in a downward direction. Retardation value है तो उसको हम downward direction में draw करेंगे. Okay, hope so it is clear. We need to also indicate the value for the OA graph. The value is here 8 kilometer per hour square. Here is the 0 and here is the minus 10 kilometer per hour square. This is the value of a graph and this is the way how we can represent the velocity time graph into the acceleration one. Okay, hope so it is clear. अगर कोई doubts हो, कोई comment हो, you can write the doubts and comments in the comment box. You can add the text there. अगर कोई doubt हो तो वहाँ पे आप बता देना कि ये doubt है, ताकि next वीडियो में एक बार हम उसको फिर से clear करके चलें, कि जो भी आपके doubts हैं उसको clear करते चलें. ठीक है. सो दिस वॉज अ ग्राफ. इस पे प्रैक्टिस सीट में दे दूंगा कुछ, उसको आप लोग को प्रैक्टिस करना है. उसमें से जो क्वेश्चन नहीं आए, यू जस्ट टेल मी, आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो. आगे देखते हैं द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक देखते हैं. द अनदर टॉपिक इज द रिलेटिव वेलोसिटी. व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी? इफ वी टॉक अबाउट द रिलेटिव थिंग्स, इफ वी टॉक अबाउट द रिलेटिव वर्ड्स, फिजिक्स के केस में रिलेटिव वर्ड बहुत जगह यूज होता है, बार बार यूज होता है, कई जगह यूज होता है कि व्हाट इज द रिलेटिव दिस, व्हाट इज द रिलेटिव दैट. रिलेटिव मीन्स व्हेन वी आर को रिलेटिंग द टू थिंग्स टुगेदर. अगर हम दो चीज़ों को रिलेट करा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी. अगर दो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, इफ वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट इन अ मोशन एंड वी आर कंपेयरिंग द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विथ रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2, then we are comparing the relative velocity. हम relative velocity के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. Means what is the relative velocity? We can see here the velocity of object 2 with respect to the object 1 when both object are in a motion. हम अगर one object का 2 के रिस्पेक्ट में करा रहे हैं, 2 both case can be there. Remember that. जरूरी नहीं है कि 2 सेकेंड ऑब्जेक्ट का फर्स्ट ऑब्जेक्ट के केस में ही relative velocity होता है. हमारे दोनों केस होते हैं. It can be either the object 2 with respect to object 1 or object 1 with respect to the object 2. That is called the relative velocity. Means when we are comparing the velocity 1 with respect to the velocity 2, that is called the relative velocity. अब relative velocity का use कहाँ होता है? That is a simple, it's a very simple. We use the relative velocity in the case of the comparison of the two object. हमें दो ट्रेन की स्पीड पता करनी है, कौन सी स्पीड ज़्यादा है, कौन सी स्पीड कम है. सपोज we are taking the example of speed of train A and speed of a train B. B train आगे निकल जाती है. When both are moving with the same direction, B train आगे निकल जाती है. Then what we will say, the train A is slower than B. हम कहेंगे A हमारा B से slower है. और we can say the B is the faster with comparison to the A. हम यहाँ पे compare कर रहे हैं. So if we are comparing the two velocities, then it will be said as the रिलेटिव वेलोसिटी. उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं जब हम कोई दो वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं आपस में. दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी. नाउ लेट वी सी द सम केसेस हियर. व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी? वी हैव सम ग्राफ. ग्राफ में हम कुछ देखेंगे, कुछ केसेस देखेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है. देखो, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालना बहुत आसान होता है. अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, मैंने भी बताया था कि ए को हमने कंपेयर करके निकाल दिया आसानी से कि ए इज द स्मॉलर एंड बी इज द ग्रेटर वन. नाउ इन द केस ऑफ अ ग्राफ, हाउ वी विल रिप्रेजेंट द रिलेटिव वेलोसिटी? हियर इफ द ग्राफ इज ड्रॉन लाइक दिस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दिस इज द वी ए एंड दिस इज द वी बी. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, वी ए इज इन द केस ऑफ द वी बी, दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. सो वी विल से हियर वी ए इज इक्वल टू वी बी. ये पहला केस है, वी ए इज इक्वल टू वी बी, यानी दोनों ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, दोनों ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे हैं वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. सो वी विल से वी ए इज इक्वल टू द वी बी. हमारे दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. नाउ इन द केस इफ द ग्राफ इज गिवन लाइक दिस, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, and the first graph is going like this and second graph is going like this. This is the VA and this is the VB. What this graph represents? ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है कि here VA is greater than VB, VA is greater than VB.
बट अगर VA बड़ा है तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर VA बड़ा है VB से तो कभी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ध्यान देना। इन दिस केस दे नेवर इंटरसेक्ट और दे नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे या क्रॉस नहीं करेंगे इनका ग्राफ। तो इन दिस केस द ग्राफ here VA is greater than VB. If the graph is drawn like this, एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ है एंड दूसरा ग्राफ ऐसे ड्रॉ है, दिस इज द VB एंड दिस इज द VA. Now in this case we can say VB is greater than VA. हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे VB is greater than VA. अब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट आसानी से कर जाएंगे. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी. अब हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तब हम यूज करेंगे व्हेन वी आर फाइंडिंग द 2 or 3 velocities together. Suppose that the object is moving with the velocity VA in this direction and the second object is moving with the velocity VB in this direction and this is the angle theta. अब हमें इसका रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है कि दोनों का फाइनल रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों के फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी. तो हमने पढ़ा है कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, इट विल पास समवेयर हियर. हम देखो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं. इन दिस केस इफ वी नीड टू फाइंड द रिजल्टेंट वी नीड टू ड्रॉ बैक द A इनटू द बैक साइड. हमें A को बैक साइड में ड्रॉ कर देंगे. दिस इज द माइनस VA. हमने क्या किया, वेलोसिटी VA की डायरेक्शन को हमने बैक साइड कर लिया. क्यों, अभी इसका रीजन मैं बता रहा हूं कैसे हमने क्यों किया. हमने VA की वेलोसिटी को बैक साइड में कर लिया. नो व्हाट विल बी द एंगल हियर, दिस विल बी द एंगल 180 माइनस थीटा. This will be the 180 minus theta. Now what will be the resultant of these two? The resultant of these two will pass from here and this is the resultant relative velocity. और ये हमारा resultant relative velocity find करने का तरीका है. It means what will be the resultant relative velocity? VR is equal to under root VA square plus VB square minus 2 VA VB cos 180 minus theta. It will be represented with the this formula. हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था वेक्टर. जब हम लोगों ने पढ़ा था इसीलिए वेक्टर हम लोगों ने पहले पढ़ लिया, क्योंकि कुछ टॉपिक्स वेक्टर के हमारे वन स्ट्रेट लाइन मोशन में भी आते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है बाद में कि कैसे आ गया, कहाँ से आ गया. इसीलिए मैंने सबसे पहले वेक्टर पढ़ाया, उसके बाद फर्स्ट इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ाया. अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन. In the case of vector, we have learned there all the things that if we represent the vector with the A and the vector with the B, the resultant will be this here R, and resultant R will be represented here under root A square plus B square plus 2AB cos theta. इस resultant से हम इसको represent करते हैं. So this is the way of representing the relative velocity. ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, जो एक तरीका है रिलेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने का. ठीक है, आगे अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इसको रिलेटिव वेलोसिटी को और अच्छे से क्लियर करेंगे. तो नेक्स्ट क्लास का वीडियो जरूर बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी के न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे होते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नेचर के होते हैं. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे द न्यूमेरिकल्स विद द रिलेटिव वेलोसिटी और इस चैप्टर को एंड करेंगे. नेक्स्ट क्लास में कुछ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट क्लास इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. अच्छे से देखिएगा नेक्स्ट क्लास, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. लास्ट टॉपिक होगा, उसमें मैं क्या बताऊंगा अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी, ऑल्सो द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी क्वेश्चंस. एनसीईआरटी क्वेश्चंस के भी न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट क्लास की वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. नाउ होप सो आपको ये समझ में आया होगा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट. एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ. व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी? When we are comparing the two velocities with each other, that is called the relative velocity. अब दोनों वेलोसिटी में कोई भी एक वेलोसिटी बड़ी हो सकती है, एक वेलोसिटी छोटी हो सकती है. If both the velocity are the equal, we will draw the graph like this. If VA velocity is greater, we will draw like this, and VB is smaller, we will draw like this. In the case of the VA is smaller and VB is smaller, we will draw graph like this. What happens when we are getting the velocity at the 2 point? एक अगर 2 पॉइंट से वेलोसिटी दिया हुआ है तो VA हमें दिया हुआ है, VB दिया हुआ है. सबसे पहले हम VA को बैक साइड कर देते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? हम यहाँ से भी फाइंड करेंगे तो भी हमें निकलेगा, VR हमें यहाँ से भी निकलेगा, बट दिस वन विल बी द मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर फाइंडिंग द क्वेश्चन. अगर हम एक किसी भी चीज़ के ब्रॉड वैल्यू को, सपोज करो अगर हमें
स्मॉल वेलोसिटी दे दी जाए, 0 पॉइंट में दे दी जाए, तो उसका रिजल्टेंट फाइंड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इन कंपैरिजन टू द बिगर ऑब्जेक्ट। किसी बिगर वेलोसिटी का ऑब्जेक्ट का हमें रिजल्टेंट फाइंड करना ईजी होता है, इसलिए हमने इसको बैक साइड करके 180 माइनस थीटा करके हमने एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकाल लिया कि दिस इज द रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ए एंड वेलोसिटी बी। ओके, होप सो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो इन टॉपिक्स रिलेटेड, you can comment on the comment box, you can tell there, either be you can message me on the WhatsApp group, whatever be you feel free, you can do there and tell me if any problem is there। अच्छे से पढ़ाई करते चलो, कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली मुझसे कॉल करके मैसेज करके या किसी भी तरह से आप पूछ सकते हो। इफ़ यू हैव नंबर, यू हैव गॉट द नंबर इन ऑल द ग्रुप्स देयर, मेरा नंबर वहाँ पे अवेलेबल है। किसी भी समय बिफोर द 9 o'clock, रात में 9 बजे से पहले आप किसी भी समय कॉल करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ओके, सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, पढ़ाई करते रहो अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक के लेकर के, लेकिन दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ओके, गुड बाय बेटा।